fellow students. I am Ishan Singh. I'm a practicing advocate in the Patna High Court, and today I'll be dealing with quantitative techniques. So this remains an important part of CLAT, as not many students really focus on quantitative techniques, but this can help you score more marks. But you need to be confident before solving that, because confidence is the key. Confidence is the key to everything, even when you are advocates. So class, we'll be dealing with quantitative techniques, and the first one you can see is the line graph, which deals in distance and time. Now, when you look at the first question, it says the speed of the car is. As you can see that the graph says 1 first hour and 6 kilometers, then you can see it's 2 and 12. After that, you can see there's 3 and 13. So you can easily make out that the distance is increasing by 6 kilometers per hour. So you can easily say that you don't have to calculate much in this, and you can easily say that the first option is the right one. Now, moving on to the second question, you would look at the speed of the car in meters per minute is. You would have to calculate it accordingly. So if the car is traveling 6 kilometers per hour, it would be 6,000 meters per hour. In a minute, if you have to calculate it, it should be 6,000 divided by 60. So you would get 100. And as you can see that the first option is 100 meters per minute. So the answer would be A. Moving on to the next question, the distance traveled by the car in 4.5 hours would be. That's also an easy one. All you have to do is take the speed of the car, that is, wait a minute, let me just clear the screen. Coming back to the question, you can see that the question asks the distance traveled by the car in 4.5 hours is. So accordingly, you would take 6 kilometers per hour into 4.5. That's 27 kilometers per hour. 27 kilometers, that is the total distance traveled. And as you can see that the option D is the right one. Moving on to the next question, when you see the question says the car covers a distance of 12 kilometers in. Since you know the speed of the car is 6 kilometers per hour, and this doesn't need much calculation, as you can see that 12 divided by 6 kilometers per hour would be 2. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 घंटे में गाड़ी जो है वो 12 किलोमीटर चल देगी. So the first option is the right one. You can see that the next question is a tabular one, which says which deals in hours and kilometers traveled in distance of A and B, two particular persons. So आप अगर एनालाइज करें इन 4 क्वेश्चंस को, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 4 क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट करने की जरूरत नहीं थी. और अगर आप इसको बस ध्यान से देखें तो आप अपने मेंटली भी ये सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम. आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ इसको बनाना है. यू हैव टू कीप एन एटीट्यूड कि ये हमसे होगा, तभी आपसे हो सकता है. अगर आप डर के चलेंगे तो आपको हो सकता है आप पैनिक करें और आपको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस. अगर आप क्लैट दे रहे हैं तो जैसा आप जानते हैं 1.5 घंटे का पेपर है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. और क्यूटी जो है वो आप अगर कामली करेंगे तो 3-4 मिनट में आप कर सकते हैं. तो इसके आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इट्स अ टैबुलर क्वेश्चन दैट डील्स इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए एंड बी. तो आप अगर देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज स्पीड ऑफ ए क्या होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स. एज यू कैन सी दैट द फर्स्ट 3 आवर्स में स्पीड जो है बी का वो 20 से 25 और 30 जा रहा है. या तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 प्लस 25 प्लस 30, दैट इज 75. एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल को 3 आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 आवर्स का आपको लिमिट दिया गया है इसमें. तो आप आएंगे 75 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 25. ये हो गया इसका एवरेज स्पीड, जो कि है ऑप्शन बी. अगर आप इसको आसानी से करना चाहते हैं बिना कैलकुलेटिव पार्ट के, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन में कि 20, 25 और 30, क्योंकि 5 और 5 से इंक्रीज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 20 और 30 का मीडियन जो होगा वही उसका एवरेज होगा, विच इज 25. तो ये और जल्दी हो सकता है. तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप ये सब पे ध्यान दें, ना कि आप पहले कैलकुलेशन में लग जाएं जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप बस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर सामने भी दिख जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. द रेशियो ऑफ एज एवरेज स्पीड
ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 आवर्स एंड द लास्ट 2 आवर्स इज। तो आपको ए का स्पीड कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको, सिंस ये रेशियो में मांगा गया है, तो आपको ध्यान देना होगा इस चीज पे कि first 2 hours is to, the ratio should be in first 2 hours and the last 2 hours. तो आप जाएंगे 10 plus 20 is to 30 plus 40, आपको मिलता है 30 is to 70। आप दोनों तरफ का 10 आप कैंसिल कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि आपके पास आंसर आ गया है 3 is to 7। तो आप ऑप्शन सी पे टिक मार सकते हैं। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट द एंड ऑफ थर्ड आवर। तो आपको करना क्या होगा इसमें कि आपको पहले 3 आवर्स का टोटल करना होगा ए का और बी का, और फिर आपको बी के डिस्टेंस से ए का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना होगा जिससे आपको डिफरेंस पता चले। तो आप देख सकते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30, ये है ए का, इज इक्वल टू 60। बी का आप निकालेंगे तो आता है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट 3 आवर्स का सम 75 है, तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं, तो आपका टाइम थोड़ा बचेगा। और यहां पर आप कर देंगे b माइनस ए, तो आपके पास आ जाएगा 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 15। सो द आंसर इज बी, 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा इसमें। ये आप मेंटली भी कर सकते हैं, आपको एडिशन के साथ थोड़ा फेमिलियर लेना पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक मैथ्स है, अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि ये जो डिजिट्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं वो जीरो के टर्म्स में है, विच इज इजियर टू कैलकुलेट। तो आपको लिखने से बेटर आप मेंटली इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं बार ग्राफ पे। बार ग्राफ में आप देखेंगे कि 3 साल के स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है 2006, 7 and 8। तो dealing with the first question, how many students passed in the first division in 2007? As you can see that the first division is supposed to be the block color, it's a solid color, तो first division है white area, ये white area है, और ये पूछ रहे हैं 2007 का। तो 2007 पे जब आप जाएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये ग्राफ जाके 30 पे खत्म हो रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बार ग्राफ है जिसमें बताया जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। तो आप पहले क्वेश्चन पे आएंगे, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन इन 2007। एज यू कैन क्लियरली सी दैट द ईयर 2007 शोज सॉलिड कलर टू बी 30, जो कि आप ऊपर भी देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन का वो डिमार्केशन है, पर ऑप्शंस में तो आपको ये कहीं दिख नहीं रहा है। हो सकता है टाइपोग्राफिकल एरर हो गया हो, गलतियां तो सबसे होती हैं आखिर, पर आपको वही मिटाना है अपने जीवन से। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन 2008। आप अगर देखेंगे ऊपर के कलर से, तो फेल्ड का जो कलर है वो ग्रे है, और आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो 240 पे जाके खत्म हो रहा है, और फेल्ड स्टूडेंट्स का जो ग्रे कलर है वो शुरू हो रहा है 180 से। तो आप 240 जो कि टोटल है उसमें से आप 180 घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 60, जो कि 2008 में फेल हुए। फिर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी % ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन 2008, जिसका आंसर निकालना बहुत आसान है। एज यू कैन सी 60 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट फेल्ड इन 2008, जो कि आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर आया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240 है, इनटू 100। ये आप डिवाइड कर देंगे 60 को 240 से और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आपके पास आएगा 25। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में डी ऑप्शन जो है वो कहता है 25%। ये हो गया आपका आंसर फॉर द स्टूडेंट्स दैट फेल्ड इन 2008। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ सेकंड डिविजन्स इन 2006। 2006 के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सेकंड डिवीजन इज द ब्लैक कलर, जो कि शुरू हो रहा है 80 से और जा रहा है 140 तक। तो इसका रेंज जो है वो 60 का है। तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट पास सेकंड डिवीजन इन द ईयर 2006। तो आप जैसा देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा।
आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई देंगी। आपको बस पैनिक नहीं करना है। प्लीज बी कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स का ग्राफ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स 50 एंड अबव। एज यू कैन सी कि 50 का ग्राफ जो शुरू हो रहा है वो यहां से शुरू हो रहा है, और ये टोटल नंबर हो गया 4, फिर 7 और फिर 5। तो 4 + 7 + 5 इज इक्वल टू 16। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो है 16, जो कि सही आंसर है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इफ द पास मार्क बी 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल फेलियर्स। तो 30 के पहले जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसमें से 10 मार्क्स आया है 2 बच्चों को, 20 नंबर आया है 6 बच्चों को, और 30 तक आया है 10 बच्चों को, जिसका टोटल हो जाता है 18। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी 18 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 10। तो क्योंकि फर्स्ट बार जो है वो 2 पे जाके खत्म हो रहा है, तो आपको पता है कि ओनली 2 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स अप टू 10, एंड एज यू कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो कहता है इफ द पास मार्क बी 30, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो आप इसका टोटल करेंगे। इफ द पास मार्क्स बी 30, तो 30 के बाद से आप आ जाएंगे 30 से 40 के रेंज में 3 लोग हैं, 40 से 50 के रेंज में 8 लोग हैं। उसके बाद का आपको पता है कि 50 से 80 16 लोग पहले से हैं, तो आप 16 + 8 + 3 जो कि 27 होता है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो है 27 + 18 विच इज इक्वल्स टू 45। ये 18 कहां से आया आप सोचेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 148 पे ध्यान दें, तो वो पूछता है कि इफ द पास मार्क बी 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स, जिसका आंसर आपने दिया था 18। Total number of students will be those who have scored more than 30, that is 27 people, and 18, that is the number of students who obtained up to 30. तो आपका टोटल आ गया 45। अब आपको परसेंटेज निकालना है इसका, तो आप करेंगे 27/45 × 100। तो ये 9 से कटेगा, तो ये होगा आपका 3/5 × 100। आप 5 से 100 को काट देंगे 20, तो यू गेट द आंसर 60। So 60% is the total number of students who have passed the paper, which is option C. तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चंस थे, ये इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, ये मॉडरेट कह सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि ये इजी ही थे। इसमें आपको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप पेशेंटली हर ग्राफ को ध्यान से देखेंगे एक बार, तो आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब वहीं मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज कीप इन माइंड दैट यू डोंट हैव टू पैनिक एट एनी मोमेंट इन द एग्जाम और while solving the mock tests.